So, Assalamu alaikum everyone. Let me introduce myself. This is Naghman Hameed. I teach A-level computer science and I have an experience of more than 25 years of teaching A-level students. I also teach O-level students in several schools. The purpose of holding these online classes is not just to find out the answers to the questions, but to develop an approach how to attempt the questions, right? This is important. Because you get the answers in the marking schemes and papers are frequently available on different websites, right? As you have seen, Z notes है, दूसरे कई notes हैं, तो वो issue नहीं है. The important thing is how to attempt the paper, how to attempt different questions, and we'll go through different questions today, and we'll develop a strategy how to deal with the questions in the paper, right? There'll be lot of tips discussed during the class, right? Because we don't have enough time to answer every question that actually is in the paper. आपने मुझे पास पेपर के कुछ टॉपिकल क्वेश्चंस भेजे हैं, ठीक है? ध्यान ने जैसे मुझे भेजे, आपने डिसाइड किया कि हम इनको डिस्कस करेंगे. फाइन, we'll discuss most of them, but please keep in mind that important thing is how do we deal with those questions. ठीक है? All of you agree with it? ठीक है ना? अभी मैं आपके yes, sir, definitely. Right. मैं आपके ग्रुप चैट भी देख रहा था, उसमें यही है कि स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं ये सिलेबस में है नहीं है, इज इट फ्रॉम पेपर 1 और पेपर 3, यू नो योर सिलेबस हैज बीन चेंज्ड लास्ट ईयर. सो वो सारी चीज़ें क्वेरीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? हम उसके सारी डिस्कस करेंगे. आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन. The lesson is being recorded, so you can easily replay this video and you can get the questions that you just forget. All right. These are the questions from the past papers that you sent me. Let's discuss. And the topic is not exactly the processor fundamentals. It's processor fundamentals and assembly language and tracing assembly language program. ठीक है? क्योंकि जो प्रोसेसर फंडामेंटल्स हैं वो आपकी कैम्ब्रिज की बुक में चैप्टर नंबर 5 है और ये असेंबली लैंग्वेज चैप्टर नंबर 6 है. तो हम ज़्यादातर चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे. इसका एक क्वेश्चन तो मस्ट होता है, ये जो ये वाला आपको नजर आ रहा है, ऑल इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन इन असेंबली लैंग्वेज एंड यू आर आस्क्ड टू ड्राई रन द प्रोग्राम. You see, these are short questions and there'll be a question now. This is about dry running the assembly language program. Let me show you a typical dry run program. Look at this. We have to run these commands, dry run these commands one after the other, and we have to fill up the trace table like this. Okay? Accumulator is the most important column in these types of questions. इसको आपने अपडेट करना है, फिल करना है. अकॉर्डिंगली आपने मेमोरी एड्रेस जो अपडेट हो रहे हैं उन सबको फिल करना है. एंड ऑल्सो द आउटपुट कॉलम एंड इंडेक्स कॉलम, दूसरी चीज सारी आप करेंगे. ठीक है? सो वी नीड टू नो हाउ टू डू दिस. चलिए, I'll start with question number 1. This table that contains the instructions in assembly language is always given in the question. Right? You see, instruction consists of two parts. Opcode means operation code and operand. These are typical opcodes that come in exams usually, and these all opcodes are given in your book. Okay? A few of them are given in this question. इसमें सिर्फ वही दिए हुए जो आपको इस क्वेश्चन में आए हैं, ठीक है? बाकी सब नहीं दिए हुए. There are about more than 20 such opcode given in the book and syllabus. ठीक है? यहाँ आपको सिर्फ 7 दिए हुए. इसका मतलब आपके क्वेश्चन में 7 यूज हो रहे हैं. And this is the operand, second part of instruction. Operand contains either address or register or the data itself. ठीक है? एंड के साथ कोई ऑपरेंड नहीं आता, बाकी सबके साथ ऑपरेंड्स आते हैं. इसी तरह दो और कमांड्स हैं, इन आउट, उनके साथ भी कोई ऑपरेंड नहीं आता. ठीक है? उन इंस्ट्रक्शंस में सिर्फ ऑपकोड होता है, मींस ऑपरेशन कोड. ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है, बट एज एन एडवाइस
we should have prior knowledge of all these commands and their use. ये explanations आपकी पढ़ने के लिए एग्जाम में नहीं होती. अगर आपको इनका पहले नहीं पता, LDD, STO, स्टोर, LDI, LDX, ये वो आप यहाँ पढ़ के उसको करेंगे, then I'm afraid you will be wasting lot of time of your paper. ठीक है, तो आपने ये चीज़ें पहले से आपको आनी चाहिए. यहाँ पे सिर्फ आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, या if there is any unusual command that is given in the opcode that has not been used in the book, there are so many examples, then you can read the instructions, read the explanation, and you can find out the purpose of that instruction. Okay, जैसे पास पेपर में एक LDV कमांड यूज हुई है, it has not been used in the book. ठीक है, LDV आपकी बुक का पार्ट नहीं है, सिलेबस में नहीं दिया हुआ, बट यहाँ पे उन्होंने पास पेपर में दिया, तो उसकी जस्टिफिकेशन ये है कि वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं. देयर वाज अ कमांड ऑफ JNE, तो वो यूज हुई है, वो पेपर में नहीं है, तो JNE इन्होंने लिया, तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं. बट ऑल दी अदर कमांड्स, मेजॉरिटी ऑफ द कमांड्स दैट हैज बीन गिवन इन द बुक, वो आपको यहाँ से करने से पहले बुक में आनी चाहिए. These are the memory locations, these are the contents, you see, and these are the addresses. Addresses हमेशा order में होते हैं. Like they start with 120, there'll be 121, 22, 23. If they start with 100, then 100, 100, 203. If they start with 200, 201, 202, 3, इसी तरह सब होते हैं. ठीक है, आपने corresponding contents उनके use करने हैं, and they go up to 200. Now, the contents of accumulator after execution of the instruction. You see, this is the first question. Okay, now before reading the question, like this is the question A1, you can just go through these instructions, not minutely, but generally थोड़ा सा उसको देख ले और फिर इसको देख ले. ठीक है, just in a few minutes, 1 or 2 minutes, that's it. So before doing the questions, before reading the question even, just go through the scenario shortly. Right? Now, come to this. Show the contents of accumulator after execution of instruction. This instruction will be executed LDD, load directly, means load directly into accumulator. जहाँ भी LD कमांड यूज होती है, इसका मतलब लोड होता है, और इसका मतलब कहाँ पे लोड करते हैं, accumulator में, because accumulator is the general purpose register. Directly means go to this location 121 and load the data directly to accumulator. 121 में क्या डेटा है, let's check. ये 120, 121 ये वाला डेटा, 120 में ये वाला और इसमें ये कंटेंट्स, इन कंटेंट्स को हम एक्यूमुलेटर में लोड कर लेंगे. ठीक है, यहाँ पे लोड कर लेंगे एक्यूमुलेटर में एग्जैक्टली डेटा. ये देखिए ये वाला. यूजुअली वी रीड बाइनरी नंबर्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, प्लीज रिमेंबर. इसको पढ़ेंगे 1 0 1 0 1 1 0. ठीक है, बाइनरी नंबर पे हमारा कल का सेशन होगा इंशाल्लाह, जो बाइनरी नंबर्स पे होगा. सो 1 0 1 0 1 1 0, इसको हम यहाँ पे उसको लिखेंगे. मैं यहाँ पे इसका you can use this feature. Just a minute, मैं इसको फीचर यूज कर लूँ ताकि हम इसके ऊपर इसको थोड़ा सा अपडेट कर लें. Take some time to load. जी, अब इसका लिख लेंगे शो द कंटेंट्स. बस आपने कंटेंट्स यहाँ पे नोट कर लेने. दिस इज एज सिंपल एज 1 + 1. 121 से जो भी आपके कंटेंट्स हैं बाइनरी में, वो आप यहाँ पे लोड कर लेंगे. ठीक है, इसको मैं आपको बता देता हूँ. बस ये 121, इन सब को उठा के इसी ऑर्डर में आप यहाँ पे लिख लेंगे. दैट्स इट. ओके, नाउ second, show the contents of accumulator after execution of this instruction. LDI 124. What does it mean? Load indirectly. It means go to this location 124, but don't load the contents of this location into accumulator. Rather, this location will send you to another address.
बिकॉज दिस इज इनडायरेक्ट ना, तो आपने यहाँ पे जाना, अगर डायरेक्ट होता तो 124 के कॉन्टेंट्स आप लोड कर देते। इनडायरेक्टली मीन्स यू विल गो टू लोकेशन नंबर 124. 124 has some other address where you have to go to. उस एड्रेस पे जाएंगे, वहां से डेटा फिर अपलोड करेंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट। अब देखिए 124 पे क्या ये वाला डेटा पड़ा। कैन वी कन्वर्ट दिस टू डेनवी? और ये तो बाइनरी में ना, हमें क्या पता है कौन सा एड्रेस, ये एक एड्रेस है, इट्स नॉट डेटा। तो इसको कन्वर्ट करें 1 2 4 8 16 32 64, इन सबको ऐड करें तो प्रोबेबली इट विल बी 127। ठीक है ना, इन सबको ऐड करें तो मोर और लेस 127 बनेगा। अब आप 127 पे जाएं, ये जो आपके कंटेंट्स हैं इनको लोड करें एक्यूमुलेटर। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे राइट टू लेफ्ट, 1001 0110, ये आप यहाँ पे लोड करें 1001 011। ठीक है, ये आपने यहाँ पे लोड कर दिया। एक्सप्लेन हाउ यू राइट योर आंसर, आप उसको बताएंगे। अब देखिए 3 मार्क्स के ना, तो एक तो आपने इसको नोट कर लिए, 1 मार्क का, 2 मार्क्स उसी रीजन आपके बताएंगे कि आई चेक दैट दिस वाज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, so this was not the destination address, so I checked the address 124 and the contents in it. I consider these contents as the address of the destination. ठीक है, I converted it to Denry and that was 127, so I went to the address 127 and loaded the contents from there into accumulator. वो आपने यहाँ पे लोड कर दिया। ठीक है, ये रीजन आप 2 मार्क्स के बताएंगे। इसमें मैं आपको साथ एडवाइस भी कर दूं, ये 4 लाइंस हैं, तो मोर और लेस यू हैव टू कवर 3 लाइंस, इससे कम ना करें, क्योंकि एग्जामिनर पे फिर इंप्रेशन ये पड़ता है कि आपने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में किया, यू हैव बीन कैजुअल इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन। तो 3 लाइंस आप एटलीस्ट करें, या 2.5 लाइन एटलीस्ट, एंड ट्राई टू कवर 4 लाइंस इफ यू कैन। ठीक है, ये आपका कंसर्न शो करता है। एंड प्लीज ऑलवेज यूज टेक्निकल वर्ड्स, हमने इस तरह के नहीं यूज करने के दिस वाज I understood that this was indirect addressing and this understood perhaps in my opinion I think this is the best answer, इस तरह के वर्ड्स हमने यूज नहीं करने, बस टेक्निकल लैंग्वेज आप यूज करें। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखें, इवन इफ योर सेंटेंस इज नॉट ग्रामेटिकली कंप्लीट, सो प्लीज राइट इन पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स में आप लिखें। एक और मैं आपको एडवाइस कर दूं कि जब आप डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखेंगे तो आप कोशिश करें कि बुलेट पॉइंट्स लिखें हमेशा, डोंट राइट इन पैराग्राफ्स। ठीक है, वो हमारे अपने लिए बेहतर है, इट बिकम्स ईजियर फॉर द एग्जामिनर टू चूज द पॉइंट्स फ्रॉम द आंसर। अगर पैराग्राफ में लिखेंगे तो उनके लिए चूज करना मुश्किल है। ठीक है, तो वो हमारे बेनिफिट में है कि हम उनको बुलेट पॉइंट्स में लिखें, कभी भी पैराग्राफ्स में ना लिखें। राइट, ओके, is there any question at this point? No, sir. ठीक है, रेहान आपका फिलहाल ओके, आई यू गेटिंग इट। Okay, show the contents of accumulator after this instruction। अब ये थर्ड है, LDX 120 जी। अब आप 120 पे गए, जी इसके कंटेंट्स आपने लोड नहीं करने। LDX का मतलब है इंडेक्स एड्रेसिंग, तो इंडेक्स एड्रेसिंग का मतलब ये होता है जी कि आपका ये जो एड्रेस है ये आपका डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं है, इस एड्रेस में आपका जो इंडेक्स रजिस्टर है उसकी वैल्यू ऐड करें, दैट विल बी योर डेस्टिनेशन एड्रेस। सो 120 प्लस इंडेक्स रजिस्टर वैल्यू, व्हाट्स दैट वैल्यू? इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पे गिवन, जरा देखिए, मेन मेमोरी हो गई, ये हो गया, ठीक है, इसको आप ज्ञात करें, दिस इज इंडेक्स रजिस्टर गिवन। अगर पहले कोई वैल्यू है, ऊपर दी हुई है, ऊपर मैंने चेक किया कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आपकी लेटेस्ट वैल्यू, इसको आप यूज कर लेंगे। 120
plus this value. Now this is binary. This needs to be converted to decimal. 1, 2, 4. 4 plus 2, 6 हो गया. ये 6 हो गई. 120 plus 6, 126. Now 126 is your destination address. So go to 126, this address, and load these values to accumulator. ये सारा आप accumulator में लोड कर लेंगे. अब डेली में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. अब बस यहाँ पे ये लिख लेंगे आंसर. And again we have to explain. 2 marks की explanation है, 1 mark का आंसर. आंसर तो उठा के 126 लोकेशन से आपने contents यहाँ पे लिख लेने हैं. आपने उसको ऐसे एक्सप्लेन करना है. तो स्टार्ट उसी तरह करेंगे जैसे आपने LDI का किया था. Okay, this is an index addressing, right? In index address, and this was the operand 120. So how does it work? Index addressing, it makes use of this address plus the contents of index register, which are 6. So 120 plus 6, 126. So 126 is a destination address. I went to that address and I loaded the data from there into accumulator. ठीक है, वो एक्सप्लेन करें. अब ये ट्रेस वाला आ गया. ट्रेस हमने प्रोग्राम यूजिंग ट्रेस टेबल्स 300 LDD. ये इंस्ट्रक्शंस आपकी एड्रेसेस है आपकी. LDD 321. लोकेशन नंबर 321 से डेटा लोड करेंगे. वेयर इज 321? ये 300. डेटा 36. सो जस्ट लोड 36 टू एक्यूमुलेटर. ठीक है, यहाँ पे आप एक्यूमुलेटर में 36 ले as a result of first instruction. Now second, increment. Add 1 to accumulator. Increment का मतलब होता है आपका जो लास्ट रजिस्टर है, जनरल पर्पस रजिस्टर, उसमें एक का इंक्रीमेंट करें. उसकी वैल्यू 37. ठीक है, 37 एक का इंक्रीमेंट हो गया. इंक्रीमेंट नॉर्मली INC यानी इंक्रीमेंट के बाद रजिस्टर का नाम आता है कि किस में इंक्रीमेंट करते हैं, बट वो उस वक्त आता है जब आपके दोनों रजिस्टर में से आपने किसी एक का नाम मेंशन करना होता है. आपके 2 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, एक एक्यूमुलेटर और दूसरा इंडेक्स रजिस्टर. बट यहाँ पे अंडरस्टूड है कि आपका एक ही है. आपका जो जनरल पर्पस रजिस्टर है वो सिर्फ एक्यूमुलेटर है इस केस में. ठीक है, क्योंकि देखिए ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन फॉर अ प्रोसेसर विच हैज 1 जनरल पर्पस रजिस्टर एक्यूमुलेटर. तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे रजिस्टर का नाम मेंशन नहीं किया हुआ. वरना आपके सिलेबस में आपकी बुक में इंक्रीमेंट अकेला नहीं लिखा जाता, उसके साथ रजिस्टर का नाम होता है. तो इट कुड बी ईदर एक्यूमुलेटर और इंडेक्स रजिस्टर. ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स रजिस्टर का इसलिए नहीं लिखा हुआ या एक्यूमुलेटर का नहीं लिखा कि अंडरस्टूड है कि आपका एक ही एक्यूमुलेटर, तो उसी में आप इंक्रीमेंट करेंगे. इंक्रीमेंट कर लिया. स्टोर एट 323. It means store the current contents of accumulator to the address 323. यहाँ पे लोड कर लें. वो क्या है 37 यहाँ पे आ गया. LDI 307 पे जाएं. ठीक है, और 307 ये देखें 7 पे आए. वो आपको एक और एड्रेस दे रहा है 320. अब आप 320 पे चले जाए. वहां पे क्या लिखा हुआ 49. ये देखें ये भी एड्रेसेस लिखे हुए हैं और ये भी लिखे हुए हैं. आपने यहाँ से देखना है. कोशिश करें यहाँ से ना देखें क्योंकि ये अपडेटेड नहीं है. ये तो फर्स्ट टाइम के लिए ठीक है. बाद में आप देखें ना इसको अपडेट कर रहे हैं. अब 323 को आप यहाँ से देखेंगे तो 0 नजर आएगा. यहाँ देखेंगे तो उसकी लेटेस्ट वैल्यू क्या है 37, राइट. तो ये 37 कंसिडर होगी, तो इसलिए आपने यहाँ से देखना. तो स्टोर एट 300 लोड फ्रॉम 301 पे 307 पे आपको उसने भेजा है. तो इसका मतलब 320 पे जाए. 320 के कंटेंट्स 49 आप लोड कर लें एक्यूमुलेटर में. ठीक है, अब ये नई वैल्यू आ गई एक्यूमुलेटर. पुरानी खत्म हो गई, पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो जाती है, नई वैल्यू आ जाती है. आप हमेशा नई को कंसीडर कर लें. इंक्रीमेंट, अब इसमें फिर एक इंक्रीमेंट कर लेंगे. इट बिकम्स 50, राइट. एंड देन स्टोर एट 322. इसको 322 पे स्टोर, जो लेटेस्ट कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर उसको 322 पे स्टोर कर लें. 50 यहाँ पे आ गया. एंड प्रोग्राम एंड्स, खत्म हो गया. अब यहाँ पे नहीं आ पाएंगे. एंड का मतलब खत्म हो गया. ये आपका पूरा, इससे आपको 6 मार्क्स मिल गए. सो विद लिटिल एफर्ट बट with concentration you are able to score full marks in this question. ठीक है, बस इसमें सिर्फ आपने diligently करना है
डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, जैसे जैसे आपको मिलते हैं वैसे करेंगे। हाँ, द सम ऑफ द क्वेश्चंस दे आर मोर कॉम्प्लेक्स देन दिस, लेकिन उनमें कॉन्सेप्ट ही रहेगा, उनमें इंस्ट्रक्शन ज़्यादा यूज होंगी, ठीक है, कुछ नई इंस्ट्रक्शन यूज होगी, बट यू हैव टू स्टिक टू द इंस्ट्रक्शंस दैट यू हैव लर्न इन द चैप्टर। ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको पता हो तो आप इनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड दिस इज सो इजी, यू डोंट हैव टू डू एनी प्रोग्रामिंग, you just have to trace the instructions and fill up the trace table, इसको फिल करना है। ये देखिए एक और सिमिलर क्वेश्चन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर अ प्रोसेसर वन जनरल पर्पस रजिस्टर, एक्स एक्यूमुलेटर एंड एन इंडेक्स रजिस्टर, यहाँ पे दो जनरल पर्पस रजिस्टर लिखे थे, ठीक है, ये देखिए। अब इनको आपने फिल करना होता है, और इसके बाद ये एक और ये भी है, ये देखिए यहाँ पे आपने नोटिस किया कि इंक्रीमेंट के बाद इंडेक्स रजिस्टर का नाम मेंशन किया, INC के बाद रजिस्टर का नाम क्यों मेंशन किया, क्योंकि यहाँ पे दो रजिस्टर्स हैं, एक्यूमुलेटर भी हो सकता है जनरल पर्पस, ये देखिए लिखा हुआ जनरल पर्पस, और इंडेक्स भी हो सकता है। पहले वाले में क्या था, ये देखिए ऊपर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे इंक्रीमेंट के साथ कोई रजिस्टर नहीं लिखा, क्योंकि आपका एक ही जनरल पर्पस रजिस्टर था, ये हमने मेंशन किया हुआ एज वन जनरल पर्पस व्हिच इज एक्यूमुलेटर, यहाँ पे इंडेक्स है ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए उसकी जरूरत नहीं है आपको रजिस्टर का नाम लिखने की, राइट। सो ये आपका इंस्ट्रक्शन हो गया। इसकी भी उसी तरह से सिंपल है, हम इसको स्किप कर लेंगे क्योंकि पहला वाला भी इसी तरह का था, ठीक है। सो विल गो टू सम अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये देखिए ये भी उसी तरह बाइनरी में दिया हुआ है, आई थिंक दिस इज फ्रॉम अ डिफरेंट वेरिएंट, बट चीजें वही, LDX इंडेक्स एड्रेसिंग 60 प्लस द कंटेंट्स ऑफ इंडेक्स रजिस्टर, ठीक है, उसमें ऐड करेंगे। देखिए इंडेक्स रजिस्टर ये देखिए दिया हुआ 1248, इसकी वैल्यू 8 है, 60 प्लस 8 68, so we'll go to 68 and we'll load these contents into accumulator। इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे और एक्सप्लेन कर देंगे आपने कैसे किया, यहाँ पे एक मार्क यहाँ लिखने का और एक एक्सप्लेन करने का, ठीक है। तो एट लीस्ट 3 लाइंस आर टू बी यूज्ड। डिक्रीमेंट इन इंडेक्स रजिस्टर, जैसे इंक्रीमेंट होता है +1, इसी तरह डिक्रीमेंट -1, तो इंडेक्स रजिस्टर की करंट वैल्यू में एक का डिक्रीमेंट हो जाएगा और उसको बाइनरी में लिखेंगे। ये देखिए इंडेक्स रजिस्टर के 1248, दिस इज 8, तो 8 से 1 डिक्रीमेंट कर लेंगे -1, इट बिकम्स 7, तो 7 को आप यहाँ पे शो करेंगे 1 1 1 एंड ऑल द रेस्ट आर zeros। At this stage, may I have a question from your side? जी रेहान, if there is any question, or should we go forward? No, sir. No, sir. That's right. Okay. Yeah, These are questions quite are like pretty straightforward. similar. Yeah. Exactly. They're simple. कुछ मैं आप देख लेता हूँ, इनमें कुछ और कॉम्प्लेक्स चीजें हैं तो ये भी आप कर लेंगे, इसको फिल कर लेंगे। यहाँ पे आपको आउटपुट कॉलम नजर आ रहा है। It's like अगर आप like 5 questions भी कर लो ना तो you get like the whole chapter and you don't have Exactly. to like solve so many past paper questions. Questions are yes, they are similar. काफी चीजें मैच करती हैं। कुछ अनयूजुअल क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप टैकल करते हैं, वो भी आप देखें कि अब जितना टाइम आपके पास रह गया, देयर जस्ट 4 days लेफ्ट, सो प्लीज लुक एट द मार्किंग स्कीम एज वेल। अगर आपको अपने अब आपने जो अटेम्प्ट किया और मार्किंग स्कीम में कोई कॉन्ट्रडिक्शन लगती है, देन प्लीज डिस्कस इट, ठीक है, मेरे साथ डिस्कस करें, ग्रुप में डाल दें। आई कुड गिव रिस्पॉन्स टू एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, ठीक है, तो जितना टाइम होता है मैं उसको फिर रिस्पॉन्ड कर दूंगा साथ साथ, बट प्लीज डू फ्लोट इन द ग्रुप एनी प्रॉब्लम दैट यू मे हैव, सो एनी फेलो स्टूडेंट और माई सेल्फ विल बी गिविंग द आंसर। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट इट, ये मैं पूरा नहीं करता, आपको सिर्फ थोड़ा सा एक बार बता दूँ। LDD 100 पे जाएंगे और वहाँ पे जो आपका डेटा उसको लोड कर लेंगे एक्यूमुलेटर में। गो टू 100, ये देखिए 100 पे लिखा हुआ 20, सो 20 को हम लोड कर लेंगे एक्यूमुलेटर में, ठीक है। Simply do this and then add 102. It means add the contents of
the location of 102, right? The contents at location number 102 to the contents of accumulator. तो 102 पे देखिए क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे 102 पे 1 को ऐड कर देंगे accumulator की करंट वैल्यू में, it becomes 21 and accumulator will be updated. ठीक है, हमेशा accumulator अपडेट होता है. Similarly, store at 103, store the current contents of accumulator at this location 103. तो इसको 103 पे लोड कर लेंगे. जैसे देखिए इसको 21 है, इसको 103 पे 21 स्टोर कर लेंगे. Now the new value is 21. Previous was 0, which has been overwritten. All right. Check for any unusual command. LDX 100 ठीक है हम कर लेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे. ये comparison command. Compare with the contents at this location 101. It means check if the contents at this location are equal to the contents of accumulator. Right? उस वक्त accumulator की वैल्यू अगर यही है, for example 21 है, so 101 पे जो contents है 100, is it equal to these accumulator contents? No. The answer could be true or false. ये देखिए true or false. तो ये false है. False है तो हम JPN को follow करेंगे. If it was true, we would have followed this JPE. ठीक है ना. ये जैसे आप पेपर 2 में if then else करते हैं, तो ये if कमांड है, ये then है और ये else है. ठीक है. if का रिजल्ट अगर ट्रू है तो आप JPE को फॉलो करेंगे, अगर फॉल्स है तो आप JPN को फॉलो करेंगे. राइट. तो इनको फॉलो करने का मतलब क्या है कि आप 58 एड्रेस पे चले जाएंगे. ये देखिए 58 पे चले गए. अगर JPN है तो 59 पे चले जाएंगे. ठीक है. इफ इट वाज ट्रू we would have gone to 58 out. Out का मतलब क्या होता है? Out means the current contents of a जी अस्सलाम वालेकुम. Actually there was some problem with Zoom, so it has restarted. Right. So okay, let me just finish because it's already almost over. हम ये वाला कर रहे थे. Right. Okay. ठीक है. तो one after the other we can execute the commands and we can go accordingly as we are instructed. अगर JPN है 59 पे गए हैं, तो ये मेरा ख्याल है लास्ट हमारे उसमें रिकॉर्डिंग में आते तो Zoom was restarting. तो अगर ये ट्रू है, if comparison is true means the contents at location 101 they are equal to the contents of accumulator will follow JPE और वो हमें भेज रहा है 58 पे. Go to 58 out का मतलब होता है जो आपके accumulator के current contents हैं will consider it as an ASCII value and its corresponding character is output. जैसे अगर ये देखें ना, ये सारे दिए हुए आपको ASCII कोड के साथ. ये दिए ASCII कोड. ठीक है. अगर करंट कंटेंट्स है 120
तो उसका corresponding s की कैरेक्टर क्या है x, तो x को हम आउटपुट में लिख लेंगे, ठीक है। जैसे आप इसको फिल कर रहे हैं ये नीचे, तो यहाँ पे अगर 120 है तो हम यहाँ पे x लिख लेंगे, कुछ और है तो यहाँ पे अकॉर्डिंग उसको लिख लेंगे, ठीक है। और अगर आपका अगर फॉल्स है, कंपैरिजन वाज फॉल्स, दे वर नॉट इक्वल, तो 59 पे जाएंगे, वहां लिखा है इंक्रीमेंट इन इंडेक्स रजिस्टर, उसमें एक का इंक्रीमेंट कर, ये इंडेक्स रजिस्टर आपका, इसमें 1 है तो वो 2 हो जाए, अगर 2 है तो 3 हो जाए, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप इसको भी कर सकते हैं। तो सिमिलरली यू कैन हैंडल दिस क्वेश्चन, ये देखिए फिर वैसे ही है, मोर और लेस उस तरह के क्वेश्चंस हैं ये। आप आपको इन कमांड से फेमिलियर होना है और आपको इनको ट्रेस करने का तरीका है, वो कोई इतना मुश्किल नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने यू जस्ट हैव टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस वन आफ्टर द अदर, राइट। इसको चाहिए, कुछ अनयूजुअल चीजें आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको एक्सप्लेन किया होगा क्वेश्चन के अंदर, ये तो सारे वही है। एलडीएम, ये immediate addressing, hash n means the value is directly loaded into accumulator, it's not taken from any address, नहीं आपने किया। LDM immediate addressing है accumulator के लिए, और LDR immediate addressing है index register के लिए, right? You are familiar with rest of the commands, right? So here this session ends. Tomorrow we'll discuss the data representation. So binary numbers and the other systems, they will be discussed. Right. Thank you so much and see you. Okay, Allah Hafiz. Officer. Hafiz.